کرتے رہے۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے آنے کا، کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو اس کے وقت پر، بڑی بھاری ہوگی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر ناگہان۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ گویا تم بخوبی واقف ہو اس سے، کہو کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، مگر وہ جو چاہے اللہ، اور اگر میں جانتا ہوتا غائب کو تو یقیناً حاصل کر لیتا بہت سے فائدے، اور نہ ہی پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات آپ بار بار بھی سنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی ہے نا، وہ صرف ایمان والوں کو ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اس نے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے وہ اس سے، سو جب ڈھانک لیا اس نے اس کو تو اٹھا لیا اس نے حمل ہلکا سا، پھر وہ لے پھری اسے، پھر جب وہ ہو گئی بوجھل تو پکارا انہوں نے اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے، اور اگر عطا فرمائے تو ہمیں صحیح سالم بچہ تو یقیناً ہم دونوں شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب دیا ہم نے ان دونوں کو صحیح سالم بچہ تو مقرر کرنے لگے دونوں اس کے شریک اس میں جو دیا تھا ہم نے ان دونوں کو، تو بلند مرتبہ ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اولاد کی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر اپنے شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اولاد نہیں ہوتی تو فلاں مزار پہ جاؤ، یہ دھاگا باندھ دو، یہ دعا کرو وہاں جا کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، ان کی یہ دعا سن لیتے ہیں تو پھر شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں نا کہ اگر تم بلاؤ ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہ پیروی کرے وہ تمہاری، برابر ہے تمہارے لیے آیا کہ بلاؤ تم ان کو یا خاموش رہو، یقیناً وہ لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح کے، بس جب پکارو تم ان کو تو چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو اگر ہو تم سچے۔ کیا ہے ان کے پاؤں چلتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے کان سنتے ہیں وہ جن سے۔ کہہ دو کہ پکارو اپنے شریکوں کو پس تدبیر کر لو میرے خلاف، پس نہ دو مجھ کو مہلت، یقیناً میرا مددگار اللہ ہے، وہ جس نے نازل کی کتاب اور وہ دوست رکھتا ہے نیک لوگوں کو، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں استطاعت رکھتے وہ تمہاری مدد کی اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہیں سن سکتے وہ، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اختیار کرو عفو و درگزر اور حکم دو نیک کام کا اور کنارہ کشی کر لو جاہلوں سے، اور اگر ابھارے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگ اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جب چھو جاتا ہے ان کو کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے تو چکنے ہو جاتے ہیں اور فوراً وہ حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں اتنی بینہ آیات دے دی ہیں کہ جب بھی وسوسہ تمہارے دل میں آتا ہے تو فوراً سوچو کہ یہ شیطان کی طرف سے برا خیال ہے، اور جو برا خیال تمہارے دل میں آتا ہے وہ شیطان ہی کا وسوسہ ہوتا ہے، اور جب کوئی نیک خیال آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اتنی بینہ آیات ہیں کہ پھر ہمیں کیسے نہ پتہ چلے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ اور اب آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے بھائی کھینچے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر نہیں کرتے وہ کسی طرح کی کوتاہی، اور جب نہیں لاتے تم ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بنا لی تم نے اپنی طرف سے کوئی، کہہ دو کہ بس میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا گیا ہے میری طرف میرے رب کے پاس سے، یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی جانب سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت خوبصورت ادب سکھاتے ہیں کہ جب پڑھا جائے قرآن تو توجہ سے سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ذکر کر اپنے رب کا دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف سے اور پست آواز سے الفاظ کی صبح اور شام، اور نہ ہو جانا غافلوں میں۔
अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानह ताला हमें दुआ का तरीका भी सिखा रहे हैं कि जब तुम अल्लाह सुब्हानह ताला से दुआ करो तो क्या करोगे कि आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके खौफ और उम्मीद के दरमियानी हालत में अल्लाह सुब्हानह ताला को पुकारो। अल्लाह सुब्हानह ताला तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे। और अब हम आयत नंबर 206 में देखते हैं, ये आयत सजदा भी है कि अल्लाह सुब्हानह ताला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो तुम्हारे रब के पास हैं, नहीं वो तकब्बर के साथ रूगर्दानी करते उसकी इबादत से, और वो तस्बीह करते हैं उसकी और उसके आगे सजदा करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानह ताला के पसंदीदा बंदों में रहें, और अल्लाह सुब्हानह ताला हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अल अनफाल और देखते हैं कि इसमें अब हमें अल्लाह सुब्हानह ताला क्या अहकामात दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानह ताला से साथ साथ दुआ करते रहा करें कि या रब्बल आलमीन, हमें जो समझ आ रही है तो हमें आप अपनी इज़्ज़न से, आप अपनी मोहब्बत से हमें तौफीक अता कीजिए कि हम इन रास्तों पे चलने वाले बन जाए। ये रास्ते हमारे लिए आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह सुब्हानह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए नबी, दरियाफ्त करते हैं ये तुमसे माले गनीमत के बारे में। कह दो कि माले गनीमत अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है। तो डरो अल्लाह से और सुलह रखो आपस में, और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, अगर तुम ईमान रखते हो। दर हकीकत मोमिन तो वो है कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो डर जाते हैं उनके दिल, और जब पढ़ी जाती है उनके सामने आयात तो बढ़ जाता है उनका ईमान, और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानह ताला ने मोमिन की दो निशानियां बताई हैं कि जब अल्लाह सुब्हानह ताला का जिक्र किया जाता है तो डर जाता है, और जब अल्लाह सुब्हानह ताला की आयात पढ़ी जाती हैं तो उसका ईमान बढ़ जाता है। अल्लाह सुब्हानह ताला फरमाते हैं, और वो जो कायम करते हैं नमाज और उनमें से जो हमने उनको दिया खर्च करते हैं, यही लोग हैं जो मोमिन है सच्चे। उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास, और मगफरत है और रिस्क है बेहतरीन। और जिस तरह के निकाला तुमको तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक के साथ, और यकीनन एक जमात मोमिनों की कि वो बिल्कुल ना खुश थे, झगड़ने लगे थे वो लोग तुमसे हक के मामले में। बाद इसकी के जाहिर हो चुका था, वो गोया कि वो हाँकते जाते थे मौत की तरफ, और वो उसे देख रहे थे। और जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोहों में से कि वो तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जंग बदर के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं कि जब मुसलमान मदीना में आए तो ये उनकी पहली जंग थी, और पहली जंग में सिर्फ 313 लोग थे, और कि टूटी फूटी कुछ तलवारें थी इनके पास, कुछ चंद घोड़े थे, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानह तआला ने इनको फतह दी। और अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं कि जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोहों में से कि वो तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि बेशानो शौकत बेहथियार काफिला मिल जाए तुम्हें, और चाहता था अल्लाह के कायम रखे हक को अपने फरमान से और काट दी जड़ काफरों की, ताकि सच कर दे हक को और झूठ कर दे बातिल को, अगरचे नागवार गुजरे ये मुजरिमों पर। जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से तो उसने दुआ कबूल की तुम्हारी, बेशक मैं मदद करूंगा तुम्हारी 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे। और नहीं बनाया इस मदद को अल्लाह ने मगर बिशारत, और ताकि मुतमईन हो जाए इससे तुम्हारे दिल, और नहीं है मदद मगर अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जब तारी कर रहा था वो तुम पर गुनूदगी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से, और नाजिल कर रहा था तुम पे आसमान से पानी, ताकि पाक कर दे तुमको इससे और दूर कर दे तुमसे नजास्त शैतान की, और ताकि मजबूत करते तुम्हारे दिलों को और जमाए रखे इससे तुम्हारे कदमों को। और अब आयत नंबर 12 में आप जरा मोमिनों की शान तो देखें कि अल्लाह सुब्हानह ताला किस तरह से मदद करते हैं कि जब इरशाद फरमा रहा था तुम्हारा रब फरिश्तों से कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो साबित कदम रखो इनको जो ईमान वाले हैं, तो मैं डाल देता हूं दिलों में उनके जिन्होंने कुफर किया हैबत, सो जर्ब लगाओ तुम उनकी गर्दनों पर और जर्ब लगाओ उनके एक एक जोड़ पर। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानह ताला ईमान वालों को कितनी खुशखबरी दे रहे हैं कि वो अल्लाह सुब्हानह ताला फरिश्तों को नाजिल करते हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जी आज भी तो वही मुसलमान है, आज फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते? तो किसी ने इतनी प्यारी बात कही कि फरिश्ते आज भी नाजिल होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ईमान वाले है किधर, तो वो वापस चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानह ताला देखिए
फरमाते हैं कि ये इसलिए कि उन्होंने मुखालफत की अल्लाह और उसके रसूल की, और जो मुखालफत करता है अल्लाह और उसके रसूल की तो यकीनन अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। मुशरिकीन मक्का के लिए ये आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से फरिश्तों के जरिए मोमिनों की मदद की थी, और क्यों मदद की थी, क्योंकि कुफारे मक्का को 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम देते रहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और ये है तुम्हारी सजा, तो चखो मजा इसका, और यकीनन काफिरों के लिए अजाब है आग का। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, जब मुकाबला हो तुम्हारा इन लोगों से जिन्होंने कुफर किया मैदान जंग में, तो ना फिरना तुम इनसे पीठे, और जो फेरेगा इनसे उस दिन अपनी पीठ, मगर ये कि चाल चलता हो जंग के लिए, या फिर जा मिलना चाहे अपनी फौज में, तो यकीनन वो ले आएगा गजब अल्लाह का, और उसका ठिकाना है दोजख, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। बस नहीं कत्ल किया तुमने इन्हें, बल्कि अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया। नहीं फेंकी थी तुमने कंकरियां जब तुमने फेंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और ताकि आजमा ले वो मोमिनों को अपनी तरफ से एक अच्छी आजमाइश से। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों की कैसे कैसे मदद करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 18 में कि बेशक अल्लाह कमजोर कर देने वाला है चाल काफरों की। अगर तुम फैसला चाहते हो तो यकीनन आ चुका तुम्हारे पास फैसला, और अगर बाज आ जाओ तुम तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, और हरगिज ना काम आएगी तुम्हारी जमात कुछ भी, खौफ कसरत से हो, और यकीनन अल्लाह साथ है मोमिनों के। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ना रूगर्दानी करो उससे जबकि तुम सुनते हो, और ना होना उन लोगों जैसे जो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो नहीं सुनते हैं। यकीनन बदतरीन है जानदारों में अल्लाह के नजदीक बहरे गूंगे लोग जो अकल नहीं रखते। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर जानता अल्लाह इनमें कोई खैर तो जरूर उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर वो यूं ही इन्हें सुनवा देता तो वो फिर जाते, और वो है ही रूगर्दानी करने वाले। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कबूल करो दावत अल्लाह की और उसके रसूल की, जो जब भी वो तुम्हें बुलाए इस चीज की तरफ जो तुमको जिंदगी अता करती हो, और जान रखो कि अल्लाह हायल हो जाता है दरमियान में आदमी और उसके कल्ब के, और ये कि उसी के रूबरू तुम्हें पेश होना है। और डरो उस फितने से जो वाक़या होगा उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया तुम में से खास तौर पर, और जान रखो कि अल्लाह सख्त है अजाब देने वाला। याद करो जब तुम कलील थे, कमजोर समझे जाते थे जमीन में, डरते रहते थे तुम के उचक ले जाएंगे तुम्हें लोग, तो उसने तुमको पनाह दी और तकवियत बख्शी तुमको अपनी मदद से, और रिस्क अता किया तुमको पाकीज़ा चीजों में से, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ना खयानत करो अल्लाह और उसके रसूल से, और ना खयानत करो अपनी इमानतों में, और जबकि तुम जानते हो, और जान रखो कि दर हकीकत तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह ही के पास अजर अजीम है। और आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वही बात जो हम कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक भी दिखा दे और हमें बातिल भी दिखा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम डरोगे अल्लाह से तो वो जाहिर कर देगा तुम्हारे लिए हक व बातिल का फर्क, और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को, और मगफरत कर देगा तुम्हारी, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और आयत नंबर 30 कि जब चाल चल रहे थे तुम्हारे खिलाफ वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि कैद कर दे तुम्हें, या कत्ल कर दे तुम्हें, या जला वतन कर दे तुम्हें, और वो चाल चल रहे थे और तदबीर कर रहा था अल्लाह, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अब देखिए इतनी खौफ वाली हालत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों का कैसे साथ देते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि सोचें इस बात को कि जो अल्लाह का वली बन जाए ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कभी हमें दे के आजमाते हैं, कभी लेके आजमाते हैं, जब हम उस आजमाइश में पूरे उतर जाते हैं ना, तो वही बात कि अल्लाहुम्मा साबिरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र करने वालों के साथ आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला शुक्र करने वालों को पसंद आता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को थाम लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी बंदों को थाम लेते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नतों में दाखिल करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का के बारे में कहते हैं, और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी आयात, तो कहते हैं सुन लिया हमने, अगर हम चाहें तो जरूर कह दें हम भी इस जैसा ही, नहीं है ये मगर हकायतें अगले लोगों की। और अब आप जरा इनकी जुर्रत देखिए कि कहते हैं कि और जब कहा उन्होंने ए अल्लाह अगर है यही कुरान बरहक
तेरी तरफ से तो बरसा हम पर पत्थर आसमान से, या भेज दे हम पर अजाब दुख देने वाला। और नहीं है अल्लाह ऐसा कि अजाब दे उनको जबकि तुम हो इनमें, और नहीं है अल्लाह उन्हें अजाब देने वाला जबकि ये इस्तगफार करते हो। अब देखिए इनके मुशरिकीन मक्का में दो चीजें थी, जब वो बार बार कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अब अजाब ले आओ जिसका तुम कहते हो, हम तो नहीं मान रहे ना, तो हम पे अगर कुछ नहीं हो रहा तो दैट मीन्स कि हम ठीक ही रास्ते पे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि उन पे अजाब नहीं आ सकता इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरमियान है, और दूसरी ये वजह है कि वो इस्तगफार करते थे। इसका मतलब ये है कि इवन दो मुशरिकीन मक्का जो थे वो बुतों की पूजा करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तगफार किया करते थे, और इसी वजह से उन पे अजाब नहीं आया था। और आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और कौन सी वजह है उनके लिए कि ना अजाब दे इन्हें अल्लाह जबकि वो रोकते हैं मस्जिद हराम से, हालांकि नहीं है वो इसके मतवली, और इसके मतवली तो वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और ना थी इनकी नमाज खाना काबा के पास सवाए सीटियों और तालियां बजाने के, तो मजा चखो अजाब का इसके बदले जो तुम कुफर करते हो। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया खर्च करते हैं अपने अमाल ताकि रोके लोगों को अल्लाह के रास्ते से, सो वो इसे खर्च करेंगे, फिर हो जाएगा वो उनके लिए बायसे हसरत, फिर वो हो जाएंगे मगलूब, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया दोजख की तरफ घेर कर लाए जाएंगे ताकि छान कर अलग कर दे अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से, और डालता जाए गंदगी को एक के ऊपर दूसरी, फिर एक ढेर बना दे इन सब का, फिर डाल दे इन सब को दोजख में। यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया कि अगर वो बाज आ जाए तो माफ कर दिया जाएगा उन्हें इस पर जो पहले हो चुका, और अगर वो फिर भी यही करते रहे तो यकीनन नाफिज हो चुका है हमारा कानून पहले लोगों पर। और जंग करते रहो इनसे यहाँ तक कि ना बाकी रहे फितना, और हो जाए दीन पूरे का पूरा अल्लाह का, फिर अगर वो बाज आ जाए तो यकीनन अल्लाह उसको जो कुछ वो करते हैं देख रहा है। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर वो रूगर्दानी करे तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा हमायती है, बेहतरीन हमायती है और बेहतरीन मददगार है। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, एक ही बात आप बार बार आप पढ़ते जाएंगे। अब देखिए इस बारे में हमने कितनी दफा ये बात पढ़ी है कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब के मुस्तहिक हो जाते हैं। और दूसरी बात जो हमें समझ आई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों पे गम डाल के मुश्किलें डाल के भी आजमाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत नवाज के भी इंसानों को आजमाते हैं। और जब मुश्किलें डालते हैं तो वजह क्या थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब इंसान का दिल थोड़ा नरम होता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को आसानी से समझ जाता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आसानी से मुड़ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इंसान पे कभी कोई मुश्किलें डालते हैं तो वो अल्लाह का रहम ही होता है। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहली बात हम नहीं सुनते हैं, उन मुश्किलों में भी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ नहीं आते, तो दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बेशुमार रहमतें उस पे नाजिल कर देते हैं। एक बात आप गौर कीजिएगा कि अगर आपको कोई इंसान नजर आ रहा है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुले आम नाफरमानी कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार दिया हुआ है, तो ये समझ लें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अजाब है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की पकड़ में है। क्योंकि उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रस्सी इतनी सख्त खींचते हैं कि इंसान की चीखें निकल जाती हैं। बस हमें जब समझ आ जाती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कानून की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत क्या है, दुनिया में हमें कैसे जीना है, और हमें आखिरत के लिए क्या बो के लेके जाना है। देखिए दुनिया में जो बोएंगे ना काटेंगे हम आखिरत में, और आखिरत में जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे तो इस दुनिया में जो हमने अमाल किए होंगे ना वही हमारे सामने होंगे। अब देखिए अराफ का पढ़ा था ना हमने कि वहां पे जो लोग खड़े होंगे जिनके नाम अमाल बराबर बराबर होंगे, वहां पे एक नेकी के लिए तरसेंगे। आज तो हम जिंदा हैं, आज तो हम कर सकते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन छोटी सी छोटी नेकी भी हम जाया ना करें, और हम भागने वाले बन जाए नेकियों में, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने वाले बन जाए। आमीन सुमा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अला